Jai Hind and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. This is the next episode of the series Soldier Speak, and I have with me Major Rakesh Sharma, Shaurya Chakra. Sir, thank you so much. You've joined me for this video, and I'm really looking forward. आपका क्या Shaurya Chakra का story है? This is something that needs to be told to a lot of people from the person who actually got it for the deed that you've done, sir. So, first of all, sir, thank you so much for the service. And secondly, thank you so much for taking time out to join me on my show. And I'd be grateful that आप अपनी story बताइए हमको कि कैसे ये जो situation था सर कहाँ से शुरू हुआ आप कहाँ थे और how did this whole thing develop? Well, first of all, Jai Hind and thank you so much, Adi. It's a pleasure to be on your show. I've been following you up regularly on your other show, and it's been really delightful. Thank you. Uh, so, as they say that although I am not there in regular service now, but Forge makes you a soldier for life, and that's how the journey continues even now. As far as my Saurya Chakra is concerned, of course, as they say that the Chakra Series Award are probably the most known or uh, they're earned rather than being rewarded for the feat which one achieves in the course of life as a soldier. My story is too like similar my brothers in the army or the armed forces, and this is of course in one of the most big insurgency timings of the valley in India, and it is in one of the most uh, high terrorism regions of the Kashmir Valley, the area of Kupwara near Losi. This is where I was deployed in the year from 2000 to 2003. Rather, I volunteered uh, to go back to Kashmir after Kargil 99. I actively participated in the Kargil war in 99. Uh, we moved out of from there, but somehow my heart as a soldier pumped me back to Kashmir, and this is where I got returned back, and this was in the peak of the militancy in Kupwara. So now, what happened was that when I landed up there, it was a very different territory. The Kargil war was a very conventional war where you could very clearly identify the areas occupied by the enemy. There was a clear demarcation of the line, whereas insurgency is a fog, and Hmm. especially in the built-up areas of big villages, uh, it is you don't know that who is who. That is the largest challenge. And in such challenges, where I took over the command of a Rashtra Rifles company, when I took over the command, this company actually was fragmented in pieces on field because it was not an organized unit as such, and it was uh, the entire strength was attached with various other units and subunits, and that is where I had to establish a new company post in one of the most disturbed area in Kupwara, and I gathered the entire company in one under one umbrella, and we set out to form the new post after 3 nights of survey, and fourth night the post was set up uh, in the identified area on a slope of a hill of a mountain, and then we started our normal operations there. It was all inflicted with militants. I believe you name a group of militants which was known those days, and all of them were there. And they were in full strength, they were united. And in fact, this area, Kupwara, is to be the launch pad for the military operations in most of the valley out there, be it Hmm. Sopore, or, towards Kashmir and all these areas. So it was a tough battle of nearly 1 year with the militants there.
that we continued. We had initially 3 Fidayeen attacks on our force, Wow. which we repulsed very successfully. And this was expected because those were the days of फिदायन अटैक. उन दिनों फिदायन अटैक जो है बड़ी एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी कश्मीर में हमारे पोस्ट के ऊपर. तो जैसी उम्मीद थी मेरी पोस्ट के ऊपर भी शुरू के 6 से 7 महीनों में 3 फिदायन अटैक्स हुए जो हमने बड़े सक्सेसफुली उनको हैंडल किया, जिसमें हमने अच्छी सफलताएं हासिल की. और उसके बाद धीरे धीरे हमने वहाँ पर जो है जो वहाँ के लोग थे, जो लोकल पॉपुलेशन थी, उनका कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया और उनके लिए हमने बहुत वहाँ काम किया as helpers to them. And we help them with education, we help them in many other civil projects, we help them in the schools, we help them in the uh, various other Sadbhavana projects which army had launched. So we established a good rapport with them. अब ये सब होने के बावजूद challenges were galore and the entire machinery was still very functional, the military. This is a very interesting thing which prelude to this particular Saurya Chakra thing. That there was a particular area where I had lot of information of the military, the top commanders of the Hizbul and all these groups visiting this area frequently, and I used to really try a lot. And the information, the inputs were not from one source or two sources; it was coming from all kind of sources, including our own intelligence. That this particular area is, happily visited by them, and they have a very good standing with the local villages there, and we need to counter it. So of course I was trying all my best to be there. I was there whole night, laying all kind of doing all kind of operations uh, on a regular basis, but I could not lay my hands on an enemy, and there was no success. So I had to do some introspection, and I had to go back to the drawing board in the military way and try to understand what was it which was not working for. So then suddenly my mind told me that uh, probably I was trying too hard and too difficult. It's time to just leave it that way, and then probably give it some time, give it a break, and then thereafter try something very sudden. And so when this is what was ये मेरे दिमाग में जब बात आई कि अगर आप ज्यादा प्रयास करोगे, बहुत ज्यादा जिद करोगे, बहुत ज्यादा प्रयास करोगे, तो शायद आप एक कहीं पर एक आप लकीर छोड़ रहे हो अपनी कि भाई आप कुछ ज्यादा ही अपना प्रेजेंस शो कर रहे हो, जो कि दूसरी पार्टी भी उसको रीड कर रही है. तो मैंने ये फैसला किया कि मैं कुछ समय के लिए उस एरिया को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दूंगा और मैं उस तरफ अ, कोई ज्यादा ध्यान नहीं. और ये मैंने लगभग 1 से 1.5 महीना मैंने सारी खबरें होने के बावजूद और बहुत सारा पुश होने के बावजूद, इंक्लूडिंग माय हायर हेडक्वार्टर्स, माय higher officers, they were telling me that what is happening there, why aren't you trying to address that area. I kept mum, I had no response, but I kept my patience, and I lived with my strategy. जो मैंने दिमाग में सोच रखी थी, जो टैक्टिक, जो स्ट्रेटेजी की मैं कुछ टाइम इस एरिया की तरफ नजर नहीं घुमाऊंगा, मैंने उस फैसले के ऊपर पूरी तरह अमल किया. और उस अमल का जो उसको फॉलो करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का जो नतीजा था, वो एक ऐसा ऑपरेशन था जो उन दिनों 1.5 महीने बाद उस एरिया का और पूरे कश्मीर का एक लैंडमार्क ऑपरेशन बना. जिस ऑपरेशन में हमें बहुत भारी सफलता मिली और हमने जो है वहाँ पर जितने भी वहाँ तंजीमें थी, मुजाहिदीन की जो तंजीमें थी, उन तंजीमों के जो टॉप लीडर थे उनमें से जो है 4 लीडर और टोटल 5 मिलिटेंट्स को हमने
पूरी रात के एक ऑपरेशन में एलिमिनेट किया। और इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने मुझे स्वर्ग चक्र से अलंकृत किया। और मोटा-मोटा ये जो है इस ऑपरेशन के बारे में मैं आपको एक एक जो है इसका आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल स्निपेट ऑफ इट। बैकग्राउंड। इंटरेस्टिंग सर, बड़ा यू नो आप जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हो उस टाइम पे तो बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी होती थी वहां पर, स्टोन पेल्टिंग से लेकर टेररिस्ट अटैक्स टू होल लॉट ऑफ डेली बेसिस हम कोई ना कोई न्यूज आती थी वहां से। मेन थिंग सर, जो आप बोल रहे थे आपने ये जो कंपनी का एक पोस्ट सेटअप किया, दिस वाज अ ब्रांड न्यू थिंग दैट यू सेट अप व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर। जी हाँ, तो हुआ ये कि अ, वहाँ पर उन दिनों में जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी तंजीमें थी उन सब की मिलिटेंट्स की बहुत उपस्थिति थी। और जिस इलाके में ये पोस्ट सेटअप की गई तो उसके ऑर्डर आए कि जो है यहाँ पर हमने एक कंपनी पोस्ट सेटअप करनी है। और उसका कारण ये था कि उस इलाके में उन दिनों में भारतीय सेना की प्रेजेंस नहीं थी। और क्योंकि भारतीय सेना की कोई प्रेजेंस नहीं थी, जो नियरेस्ट प्रेजेंस थी वो वहाँ से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर। अब आप सोचिए अगर हम 12 से 15 किलोमीटर नॉर्मल ढंग से बोलते हैं तो आपको लगता नहीं है, पर ऐसे ऊंचे पहाड़ों में और वैलीज में 12 से 15 किलोमीटर बहुत लंबा इलाका हो जाता है। नॉर्मली कैन यू कैन इफ यू हैव टू ड्रॉ अ पार्लेंस तो प्लेन में 40 से 50 किलोमीटर का इलाका हो। तो तब जो है और मिलिटेंट्स वहाँ पर दिन दहाड़े घुमा करते थे। खबर ये थी कि वो दिन दहाड़े वहाँ पर फिश के मछलियों के बड़े तालाब होते थे गांव वालों के, तो वो दिन दहाड़े मछलियों के तालाबों पर आके धूप सेका करते थे। ऐसी तो फिर जो है हमें हायर हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर्स आए कि यहाँ पर एक नई कंपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करनी है, ताकि उनका जो वर्चस्व है और जो उनका वहाँ पर बोलबाला है पब्लिक के बीच में, उसको कंट्रोल भी किया जा सके। तो ये बिल्कुल नई कंपनी पोस्ट की और इसको हमने 3 रात हमने इसका सर्वे किया इस पूरे इलाके का, जंगलों में, पहाड़ों में और आस-पास के गाँव में। और 3 रात सर्वे करने के बाद चौथी रात हमने इस प्लेस को ऑक्यूपाई करके कंपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करने का कार्य किया। भरी बर्फ के बीच में, बर्फबारी होती है साथ। इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी जो सुखद बात थी, जो एक सिपाही समझ सकता है जिसने वर्दी पहनी हुई है, कि अ, लगातार 3 रात सर्वे करने के बावजूद, जंगलों में रहने के बावजूद और बिना किसी कॉन्टैक्ट के बावजूद हम पूरा सरप्राइज़ मेंटेन करते हुए इस जगह को आइडेंटिफ़ाई करके और अपनी पोस्ट को एस्टेब्लिश कर सके। नहीं तो ऐसे हालात में ये कार्य बहुत ही दुर्गम कार्य होता है। आप इस इलाके में घुस के और अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपना फुटहोल्ड बनाना इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज़ दैट इज़ द फर्स्ट नीड इफ यू हैव टू कंडक्ट एनी मिलिट्री ऑपरेशन। तो वो तो फर्स्ट स्टेप हो गया सर। बेसिकली नौ कितना टाइम लगा था सर आपको ये पोस्ट बनाने के लिए? तीन तीन रातें आपने वो करा, उसके बाद पूरा आपका सामान आया होगा, वो लॉट ऑफ उसके बाद थिंग्स। यस, so of course after that it took us another 3 to 4 days to at least make it defensible। क्योंकि अगर हम बोलें कि उसके ऊपर हमको डिफरेंट टाइप के बंकर बनाने थे, डिफरेंट टाइप की पोस्ट बनानी थी, हथियार के हिसाब से हमको साइटिंग करनी थी, उसके हिसाब से पोस्ट को तैयार होना था। इट इज अ वेरी वेरी इट इज अ मिक्स ऑफ फिजिकल एंड टेक्निकल वर्क इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री रिक्वायरमेंट। तो वो सब करने के लिए तो हमें खैर पूरी पोस्ट को अच्छी तरह से सेटअप करने में तो लगभग 15 दिन लग गए, बट हमने उसको 3 से 4 दिन में ऐसे तैयार कर दिया था कि उसमें कम से कम अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम अपने आप को डिफेंड कर। तो दैट इज हाउ इट एंड इट वाज साइटेड एट अ स्लोप, so you at least you had a line of sight if you being attacked from any corner of the post। you have a line, you have a clear line of sight at least of 50 meters, 50 मीटर तक की आपकी लाइन ऑफ साइट थी कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप उसको रिटेलिएट कर। सर अभी आते हैं सर वो ऑपरेशन के बारे में। ऑब्वियसली काफी इंटेलिजेंस गई होगी टू प्लान दिस ऑपरेशन, काफी रिकॉनेसेंस हुई होगी टू प्लान दिस ऑपरेशन। तो क्या स्टोरी थी सर? हाउ डिड यू कम टू नो एंड हाउ डिड यू गाइस डिसाइड टू स्टार्ट? ये कैसे, हाउ डिड द होल थिंग कम इनटू प्लेस? फर्स्टली आपने बताया कि सारे कमांडर्स थे वहां पर, तो अभी कैसे, हाउ हाउ वाज दिस टेकन फॉरवर्ड सर?
So what happened after the post got established, we had, as I told you, हमारे ऊपर 3 फिदाइन अटैक हुए और हमने सक्सेसफुली उन फिदाइन अटैक्स को रिटेलिएट किया, और उसके लिए फिदाइन को हैंडल करने के लिए भी मैंने एक बड़ी बड़ी इनोवेटिव टेक्निक चूज की। उसमें मैंने क्या किया कि हम जानते हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनका सेंस ऑफ हियरिंग एंड देयर सेंस ऑफ एजिलिटी अलर्टनेस इज मच मोर देन। तो मैंने हमारी जो पोस्ट बनी हुई थी डिफरेंट वेपन पोस्ट, उन पोस्ट के बीच में जो गैप थे उनको उनके उनके बीच में मैंने छोटी-छोटी डॉग पोस्ट बना के, और मैंने जो वहाँ के देसी कुत्ते होते हैं पकड़वाले को, उनको लाके और उनको ट्रेंड करके उनको वहाँ पर जो है एज़ सोल्जर्स उनको उनका रख-रखाव करके, उनका ध्यान रख के, एंड आई डिप्लॉयड देम इन इन दोज़ गैप्स। तो उसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि जैसे ही रात के टाइम पोस्ट के बाहर जो हमारी वायरिंग थी, उस वायरिंग के बाहर कोई हल्की भी आहट होती थी, तो ये डॉग जो है उनसे पहले ही जो है ये एज़ एक्सपेक्टेड दे वुड गेट अलर्ट एंड दे विल स्टार्ट यू नो देयर एक्टिविटी, वो जो से भौंकना शुरू कर देंगे। तो उससे हमको काफ़ी पहले ही, इससे पहले कि फिदाइन हमारे फेंस तक पहुँचे, उससे पहले ही हमको ये पता लग जाता था कि कुछ होने वाला है। So that helped me in doing it. It is a very innovative approach which I deployed personally on my post, and it helped me in a big way. Now, as I was telling you about this operation, so since I got frustrated, and of course with a lot of inputs on everything else happening, I was not getting the success, and that was setting some kind of uh, I'd say not frustration exactly, because साल भर में हमने अच्छी कॉन्फिडेंस वहाँ पर गेन कर ली थी विदाउट हैविंग एनी लॉसेस in the area which we were unknown entity and we were all surrounded by the enemy. We had gained lot of confidence. So ऐसा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन था कि, बट yes देयर वाज वन सेटबैक कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने लगभग 1.5 महीना, जैसा कि मैं कह रहा था, कि मैंने उसको बिल्कुल ही फर्टाइल छोड़ दिया, उस तरफ मैंने गौर नहीं किया। Although I was constantly getting input and I was absorbing those inputs, और दिमाग मेरा लगा हुआ था उस तरफ। और उसके बाद फिर मेरे को, जैसा कि मैं बता रहा था कि इंटेलिजेंस तो आ रही थी, तो मेरे को ऐसी इंटेलिजेंस चीज आने शुरू हुए इंफॉर्मेशन के 2-3 सोर्सेस से कि ये जो है उस इलाके में इतनी तारीख के लगभग जो है ये लोग जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए असेंबल होने वाले हैं। तो जब मैंने तो दिस इज अ वेरी वेरी अगेन इट्स अ वेरी फॉगी, बहुत ही इंफॉर्मेशन और कंफर्म्ड इनपुट के बीच में बड़ा फर्क होता है। इंफॉर्मेशन आपको जो है वो कई सोर्सेस से आ रही है, अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, उसको आप फिल्टर करते हो, उसको आप फिल्टर करने के बाद जो है आप उसमें से जो है निचोड़ निकालते हो। फिल्टर करने फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद भी आपके पास सेट ऑफ इनपुट्स आते हैं, उन सेट ऑफ इनपुट्स को भी आप एक प्रोसेस के तहत जो है फिल्टर करते जाते हो, और उसके बाद आपको फाइनली एक ऐसा लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में इनपुट है और आप इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चाहे वो वॉर हो, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि हम सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके कंफर्म्ड इनपुट नहीं कर पाए, तो उसका हमें नुकसान होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल। So finally, it got converted into an input, and then I decided, I'm going to act on this, and it was quite a long gap which I gave. तो उसके ऊपर फिर मैंने ऑपरेशन प्लान किया, एक नाइट का एम्बुश प्लान किया, जिसमें हमारी जो टोटल टीम जो मैंने सेलेक्ट की, वो मेरे अलावा 11 लोग थे, हम टोटल 12 की टीम थी, और हम 12 की टीम को जो है एक मिलिट्री टैक्टिक्स के तहत उस एरिया के टॉप को जो है ये टीम 4 भागों में डिवाइड की गई। 3 ग्रुप को, 3 पार्टीज को जो है 3 मेन गैप्स थे जिनको ब्लॉक करना था, और जो टारगेट दे उस टारगेट में मेरे को अपने 3 टीम मेंबर्स के साथ जाके स्ट्राइक करना। तो ये हमारा प्लान था। सबके अलग-अलग रूट थे, सबके अलग-अलग टाइमिंग्स थी।
सब सारे की सारी टीम्स को अंधेरा होने के बाद रात को सेट आउट करना था। तो ये सारा हमने प्लान किया और इस प्लान के तहत मैंने अपनी जो सिलेक्टेड टीम थी उनकी भी ब्रीफिंग मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए सिर्फ जो है जो ऑपरेशन लॉन्च करने से 3 घंटे पहले उनको मैंने ब्रीफ किया ऑपरेशन के बारे में। हर एक को इन्फॉर्मेशन दी, इनपुट दी, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद जो है लास्ट फ्लाइट के बाद हम लोग जो है the entire 4 teams we set out for the operation, and that is how the operation was launched. So how far So was this location, sir? yeah, कितनी दूर so था ये? this was roughly from my location, my company post was this was roughly around 2.5 kilometers of walk अच्छा. through the lakes and the fields, through the paddy fields. Kashmir is known for paddy fields. So there were paddy fields all drenched in water and through the lakes. This was the roughly distance, and entire time plan was brief. The time matching was done. These 3 parties had to go in 3 different directions, and thereafter, at a given point of time and location, they were supposed to establish their stop, and then I was supposed to be hitting the target. So this is how it all started, and it started off quite well. Unless all these 3 parties they reached at their location, I was very satisfied. While I was on the move with my own party, so these 3 parties they ये तीनों जो है अपने अपने लोकेशन पे पहुंच कर इन्होंने मुझे रिपोर्ट दे दिया अपने पहुंचने का। और जबकि मैं टारगेट एरिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो और एक मछली के पॉन्ड के बैंक के ऊपर से हम गुजर रहे थे, तो I don't know what happened that I could hear on my radio set, I could hear the militants conversating among themselves. Probably it was something to do with radio telephony, or they had broken our frequency channels, which was not very uncommon. ऐसा होता था उन दिनों में वादी में कि आपकी छत के ऊपर आपको मिलिटेंट बात करते हुए नजर आते थे, और कई बार हमें भी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलिटेंट बात करते हुए नजर आते। तो उसके ऊपर जब मैं वो फिश पॉन्ड के ऊपर पहुंचा और रात के लगभग उस टाइम 9 सवा 9 बजे होंगे, और तो मैंने सुनाई दिया कि आज काफिर बाहर निकले हुए हैं और आज इनको मजा सिखाना। तो जब मैंने ये सुना तो मैं वहां पर रुक गया और मैंने अपने साथियों को भी इशारा किया रुकने, और क्योंकि वो कन्वर्सेशन 1-2 बार ही मुझे सुनाई दिया अपने सेट के ऊपर कि आज काफिरों को मजा सिखाना है, बाहर निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिमाग में सबसे पहला ये मैसेज गया कि जो मैंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये ऑपरेशन लीक हो चुका है और शायद जो है इन लोगों ने अब अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। So this became a very interesting twist, and it became a very a different situation for me when the operation was almost getting into its first stage of implementation. तो उसके बाद जब मैंने अपने साथियों को वहाँ पर इशारा किया रुकने का, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मेरी शरीर के अंदर से जैसे कि आदमी इंसान को मतलब एकदम क्लियर कट आवाज आती है, तो मेरे शरीर के अंदर से पसीना टप टप गिरना शुरू हुआ, और उस पसीनों की बूंदों की आवाज मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी। मुझे पता लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर से पसीना टप टप नीचे गिर रहा है, और शायद मुझे कुछ संदेश दे रहा है, मुझे कुछ कहा जा रहा है कि आगे क्या करना। तो मैंने वहाँ पर लगभग 5 5 से 7 मिनट का वहाँ ब्रेक किया, और अपने मन में मैंने विचार किया कि मैं आगे मुझे क्या करना। तो पहला तो ये था कि चाहे कुछ भी हो, हमें ऑपरेशन बहुत होते रहेंगे, बट हमें जो है अपने नुकसान से बचना है, और मैं इस ऑपरेशन को यहीं से फॉलो करके रोल बैक करूँ। पहला ये था। दूसरा ये था कि जो है वेट किया जाए और जो है इंतज़ार किया जाए
और कोशिश की जाए कि कुछ और सुनाई देता है, कुछ और पता लगता है, और अगर सब कुछ सही है तो जो उसके बाद उसको आगे रिस्टार्ट किया जाए। और तीसरा ये था कि एज अ सोल्जर यू नो आपने एक बार कदम रख दिया है, अब आप निकल चुके हैं, तो आपको फिर जो वो करना है जो आपने प्लान किया। So these were the three alternates I had, and after 6 minutes, 6 odd minutes of waiting time, took the, I decided on the third option, that as a soldier now I'll plunge into it. अब मैं मैदान में कूद चुका हूँ, तो अब पीछे नहीं देखना है और मुझे लड़ाई को लड़ना है। और वो डिसीजन लेते हुए, और ऑफ कोर्स जो मेरे आसपास साथी थे, मेरे जो टीम मेंबर्स, उनको ये तो आभास हो ही जाता है, और उनको भी हो गया कि कुछ ना कुछ तो है जो मैंने ये देर लगाई, 6-7 मिनट गवाए वहाँ पे। बट जो है फिर उसको मैंने दोबारा इशारा किया, और उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े। अब हम जब ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े तो अब ये एक्चुअली में आज तक सही बताऊँ तो मुझे पता नहीं है कि वो जो मिलिटेंट बात कर रहे थे, उनको वो हमारे ऑपरेशन के बारे में बोल रहे थे, हमारे बारे में बात कर रहे थे, या किसी और के बारे में बात कर रहे थे, ये जानकारी मुझे आज भी नहीं। अ, पर ये है कि इतना ज़रूर आभास था कि हमारे अलावा तो वहाँ पर इतना तो हम फ़ौज में कोऑर्डिनेट करते हैं कि जिस इलाके में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरे हमारे Right. साथी ऑपरेट ना करते हैं। इतना तो कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम थे वहाँ पर, हम ही थे और कोई था नहीं फ्रॉम द इंडियन आर्मी साइड। Now, so I continued with the operation, and after a brief walk of around 15 minutes, I had to cross a small nala, a small rivulet kind of a thing. And across that rivulet were some fields and then the target area, 3-4 houses. So, of course, it was a big risk again, getting into a lower ground, into a rivulet or a nala, and then crossing it. But then we got into it, and then we crossed it, and as we were coming out of the nala, uh, I just happened to gauge, something, this that sense, soldierly sense told me that something is amiss and something is going to happen. And बिना कुछ सोचे समझे मैंने जैसे ही नाले के दूसरी तरफ पैर रखा, मैंने अपने हथियार से जो है सीधे सामने की तरफ एक पगडंडी सी थी, पगडंडी जो है वो खेत के बीच में से निकल रही थी, छोटा सा रास्ता। मुझे लगा उसके ऊपर कोई आहट हो रही है, और मैंने जो है उसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने हथियार से 2-3 ब्रस्ट फायर कर दिए, और वो फायर करते-करते ही मैंने एक रोल लेते हुए, एक बड़ा-सा पेड़ था, उस पेड़ की मैंने कवर ली। और मेरे को ये देखते हुए मेरे भी जो बाकी 3 साथी जिन्होंने फायर किया, फायर करते-करते उन्होंने भी कवर लिया। और इस टाइम रात के लगभग सवा 10 बजे का टाइम था। एंड जब हमने ये किया तो हमारे ऊपर भी अच्छा खासा फायर हुआ। एंड क्योंकि फायर हुआ तो इसमें तो अब कोई शक नहीं था, ये तो ज़ाहिर हो गया कि अब हम जो है वो मिलिटेंट्स के बीच में पहुँच चुके हैं, टारगेट एरिया में पहुँच चुके हैं। और ये वो 2-3 मिलिटेंट थे जो उस उन घरों की तरफ जा रहे थे उस टाइम, और जिन्होंने हमारा मूवमेंट डिटेक्ट किया था। तो वो मूवमेंट डिटेक्ट हो गया, तो उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया। दोनों तरफ से लगभग एक एक ही टाइम में फायर हुआ। और उस पहले ही जो फायरिंग इंसिडेंट में, उस ऑपरेशन के पहले फायरिंग इंसिडेंट में हमारे लगभग 20-30 मीटर पे ही एक मिलिटेंट की लाश पड़ी हुई साफ दिखाई दे रही थी। एंड व्हिच वाज समथिंग, इट वाज अ ग्रेट बिगिनिंग टू अ ऑपरेशन एज अ मिलिट्री ऑफिसर। वन कैन सेंस इट कि अगर आपका ऑपरेशन, जहाँ पर आप इतना खतरे का आभास कर रहे थे कि आपका ऑपरेशन भी लीक आउट चुका है, वहाँ पर आपके पहले फायरिंग इंसिडेंट में आपको जो है आपके दुश्मन सामने गिरा हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है और पता लग रहा है, और बाकी के मिलिटेंट जो हैं वो इधर-उधर हो गए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि आपने जो है दुश्मन के इलाके में ठोक बजाकर आपने एंट्री की है, मौलिक तरीके से एंट्री की है। एंड दैट वाज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मी टू स्टार्ट द ऑपरेशन विद। एंड देन आई कुड इन नेक्स्ट 5 odd minutes I had established a very regular communication with all my 3 parties, and all of them, they heard the gun sound, gunshots, and they were very alert.
और इस ढंग से हमने उस ऑपरेशन की रात को अच्छे से शुरुआत की और हमारा जो है फिर दुश्मन के साथ वहाँ पर आमना-सामना शुरू हुआ और हमने धीरे-धीरे जो है उसको एक मिलिट्री टैक्टिस के तहत तहत आप कह सकते हैं कि नाइट की कुछ ड्रिल्स होती हैं, रात की कुछ ड्रिल्स होती हैं कि आपको कैसे मूवमेंट करना है, आपको किस ढंग से अपना प्रोटेक्शन करना है, वो सारा करते हुए हमने जो है उस ऑपरेशन को स्टार्ट किया और क्योंकि अब जो है मिलिटेंट्स को ये तो आभास हो चुका था, हमारा उनको पता लग चुका था कि इस तरफ से तो वो गिर गए हैं। पर जो मेरे बाकी जो एंट्री एग्जिट रूट्स थे उसके ऊपर जो मेरे स्टॉप थे, वो इतने कॉन्फिडेंस और इतने सरप्राइज़ के साथ उन्होंने अपने आप को डिप्लॉय किया था कि उनको उनके बारे में आइडिया नहीं था, तो वो हबड़ा-दबड़ी जैसे होती है आदमी यू गेट Hmm. completely shaken out and your sense stops वर्किंग एज़ टू व्हाट तो कुछ उनमें से घबरा के जो है उस तरफ भागे, तो उनको जो है जो मेरे वहाँ पर टीम मेंबर्स थे, स्टाफ थे, उन्होंने वहाँ पर उनको अ, एकदम आमने-सामने के एनकाउंटर में उन्होंने उनको ढेर कर दिया और कुछ मिलिटेंट वहाँ मारे गए। और पर क्योंकि एक तो वो कमांडर्स थे और सेकंडली वो अच्छी संख्या में वहाँ पर आए थे। मेरे हिसाब से मिनिमम 8-10 तो होंगे। तो उनके पास जो हथियार, गोला-बारूद अच्छा खासा था, तो वो एनकाउंटर फिर उनके साथ हमारा सारी रात चलता रहा और इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आया आधी रात की बात कि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि जो मेरे पास बुलेट्स हैं और जो मेरे पास एम्यूनिशन है वो कम ना पड़ जाए। तो मुझे फिर एक मिलिट्री टैक्टिक्स अ, डिप्लॉय करनी पड़ी रात को, जिसमें कि मैंने सिर्फ जो हमारी हमारा जो कन्वर्सेशन था उसमें ये शो किया कि वहाँ पर और मेरे बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ पर और आके डिप्लॉय हो रहे हैं। ऑन ग्राउंड कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। ये पहले भी भारतीय सेना कर चुकी है 47-48 के ऑपरेशन में ध्यान है मुझे। गुरखाज़ ने टैक्टिक डिप्लॉय की थी कि सिर्फ जो है वो जो रेडियो सेट पे कन्वर्सेशन था उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट डिक्लेयर हो रही थी, पर एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट कुछ और हो रही थी, डिक्लेयर कुछ हो रही थी और ये सारी सेनाएँ करती हैं Hmm. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने भी फिर आधी रात के बाद कुछ ऐसा प्रोजेक्शन किया रेडियो सेट के कन्वर्सेशन के ऊपर जैसे 2-3 स्टेशन रेडियो स्टेशंस आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कि ओके अब जो है 15 बंदे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, 10 बंदे वहाँ लगा दिए गए हैं। ये वाला हथियार वहाँ Hmm. पहुँच Hmm. गया। Hmm. Hmm. ये सब सिर्फ रेडियो सेट पे हो रहा था, एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा था। उससे क्या हुआ कि दुश्मन को के दिमाग में ये संदेश गया, ये मैसेज गया कि जो है अब वो बिल्कुल ही घिर चुके हैं और अब लड़ाई करना ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे मैं अपने जो हथियार थे, जो मेरे रिसोर्सेज़ थे, उनका और ऑप्टिमल इस्तेमाल कर सका और मैंने Hmm. उस ऑपरेशन को प्रोलॉन्ग किया सुबह तक ताकि जो है ऐसा ना हो कि मैं बिना एम्यूनिशन या बिना रिसोर्सेज़ के रह जाऊँ और दुश्मन को दोबारा से हावी होने का मौका मिले एंड इट वाज़ अगेन वेरी सक्सेसफुल टेक्निक which helped us to continue with the operation, the clearing of the houses with the entire set of drills to identify them in the houses and then nail them down, eliminate them down. और हमने ये सारी रात जो है फायर एंड मूव या उसके बाद जो एम्बुश था उसको एम्बुश को हमने एक्चुअली में फिर एक कॉर्डन एंड सर्च के रूप में परिवर्तन करके रात को Hmm. कॉर्डन और सर्च किए गए एक-एक घर के और इसमें हमने जो है सारे रात के ऑपरेशन में बिना किसी नुकसान के इन दी मॉर्निंग बाय मॉर्निंग वी एलिमिनेटेड top 5 militants of that area in that night operation. And that is how the operation was quite successful and it became a big news, uh, the valley to say. और ये ऑपरेशन जब सक्सेसफुली खत्म हुआ तो ऑफकोर्स सुबह होने के बाद हमने बड़े तरीके से तसल्ली से सारे मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए और जो है उनकी बॉडीज को सिविल पुलिस के हवाले किया और उनकी बॉडीज को हवाले करने के बाद फिर पुलिस ने उसके ऊपर अपनी कार्रवाई की। हमने जो है आई पर्टिकुलरली इंश्योर्ड कि वंस द एनिमी इज एलिमिनेटेड एक बार जब आपने दुश्मन को मार दिया है तो उसके बाद उसके ऊपर चाहे वो लोकल पब्लिक
हो या जो चाहे हमारे सिपाही हो, कोई उनको टच ना करें, कोई उनके ऊपर तशद्दुद ना करें और उनको बड़े शांति के साथ तौर तरीके से इसके साथ उनकी बॉडी को हत्या करें। So this is one of the most successful operation in a way that it actually uprooted the base of the militancy in the Kashmir Valley, particularly in the Kupwara and Sofian region those days. क्योंकि हम्म ये उस रीजन के टॉप कमांडर्स थे, तो उनको बड़ा झटका लगा और काफी बड़ा उनका नुकसान हुआ। और देन इस ऑपरेशन के बाद जो है मुझे भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने जो है शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया और मेरे 2 साथियों को ने जो है वो सेना मेडल के लिए so that was how it happened in Greece. Sir, this is a story to tell. I mean, hair raising operation and आधी रात को in a new place and ऊपर से the entire commanders list, जैसे आप बोल रहे हैं, list of commanders जिनके इनके बैठे हुए थे वहां पर. I mean, see, this is what I'm saying, sir. जो citation लिखी होती है, सर, शौर्य जी, चक्र की मैंने आपकी पढ़ी. इसमें तो 3 लाइन होती है जी. एक ऑपरेशन था, उसमें पड़ा ये था, वो था, ये था और ऑपरेशन खत्म हो गया. बट जो अंदर की करेक्ट, कहानी है वो तो आप ही बता सकते हो. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस थिंग अबाउट सोल्जर स्पीक्स इज क्योंकि ये जो कहानियां हैं सर, ये किसी को पता नहीं है. क्योंकि ये आती हैं क्या, न्यूज़पेपर में 2 लाइन लिखी हुई है. किसको क्या पता चलता है कि कितना कुछ जाता है इन चीजों के बिहाइंड, कितनी प्लानिंग जाती है, कितनी ऑब्जर्वेशन जाती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. आई मीन ज्यादातर लोगों के जो सिविलियन जिनको इतना पता नहीं होगा, उनके दिमाग में रहता है अच्छा जी आर्मी गई, उन्होंने 2 लोगों को मार दिया, होगी कहानी खत्म. यू नो no, द you are correct, you are very right, Adi. See, uh, to be very honest, it's an unknown world. It's a very हाँ. different. It's a very different and unknown world. हम्म One has to experience to live it and understand it. So, अब ये जैसा आप कह रहे हैं कि आपने मेरी साइटेशन पढ़ी है और भी बड़ी साइटेशन, तो साइटेशन इज अ फॉर्मेलिटी जो गवर्नमेंट पूरा करती है, सरकार पूरा हम्म करती है उस पर्टिकुलर यू नो अवार्ड को या उस चक्र अवार्ड को वो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए. पर जब हम ग्राउंड पर इन चीज़ों की अनुभूति करते हैं और जब इनको हम हैंडल करते हैं, तो उसमें कई बार इंसान की मैं ये कहूँगा कि उसकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस और उसकी लाइफ की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन करने की कैपेबिलिटी है और साथ में जो है अपने अपने साथियों के ऊपर जो उसकी ज़िम्मेवारी है, हम्म वो रिस्क रिस्क और रिटर्न वाला जो एंगल है और स्ट्रेस कंडीशन के थ्रू सक्सेसफुली किसी लाइफ लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के जो तौर तरीके हैं, तो उनके पीछे पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि जाहिर-सी बात है आम इंसान ना समझ पाता है, ना जान पाता है, ना उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो हम उनको कह भी नहीं सकते. बट येस, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि इट इज़ मच मच मोर even than one can imagine, what goes through all. सर, आई मीन सुन के इट्स क्वाइट अ डिफरेंट. आई मीन देखिए, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, इनकाउंटर्स की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो मूवी में दिखाते हैं पुलिस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दिस एंड दैट, एंड गोलियां चल रही हैं इधर उधर. बट हियर दिस इज अ वेरी प्रिसीजन ऑपरेशन जिसके बारे में आपने बताया. एंड मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो आर्मी करती है बड़े बड़े प्रिसाइसली प्लान्ड होते हैं, दिन भर दिन उसके ऊपर लोग काम करते हैं कि एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज जाएगा. एंड यू आल्सो टोल्ड अस बीच में एक जो आपने बताया कि रेडियो सेट पे पता चल रहा था. मैं तो खुद ही सोच रहा था उस टाइम पे यार, ये ये तो बड़ा चक्कर है. हमारा रेडियो सेट वो सुन रहे हैं, हम काम सुन रहे हैं, पता ही नहीं कौन. एंड कोई मैसेज ऐसे पास करे तो किसी को पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है. सो इट्स अ वेरी डाइसी It's a सिचुएशन. very एंड delicate situation. हाँ It's जी, a very आप. delicate situation, and of course, now luckily our entire preparedness or our resourcefulness in terms of man machinery, weaponry is much better. उन दिनों में हमारे पास इक्विपमेंट की बड़ी कमी हुआ करती थी. जी आज जी की तारीख में हम बोलते हैं कि जैसे जो है बुलेट प्रूफ पटकास, बुलेट प्रूफ जैकेट एंड ऑल थिंग्स,
that used to be, very, very scarce those days. Very lucky people हम्म used to get. हम्म मिलिटेंट्स वर फार बेटर इक्विप्ड देन अस. उनके जो रेडियो सेट्स होते थे और उनके जो बाकी इक्विपमेंट हथियार वगैरह होते थे वो हमसे बहुत अच्छे हुआ करते थे. तो तब भी हम जो है इन चैलेंजेस को फेस करते थे. ये सब होने के बावजूद भी हम लोग जो है हमारा जो हौसला था वो हमेशा बुलंद रहता था. ऐसा नहीं था कि जो इन इन चीज़ों से हम कभी हार मान जाएँ या हमारे अंदर कोई घबराहट हो जाए, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं. क्योंकि एज़ अ सोल्जर वन्स यू आर कमिटेड देन यू आर कमिटेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द नेशन एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ. दैट इज़ व्हाट इट काउंट्स एंड दैट इज़ व्हाट ऑलवेज़ केम फर्स्ट. तो हम्म वो है. और ये चीज़ हम भी समझते थे, हम भी जानते थे कि देखिए बाहर की दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है और हम यहाँ पर जो है ये दिन-रात गोलियों का खेल खेल रहे हैं. अ, अलग ही लाइफ है. कई बार उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा सा कई बार दिमाग में once in a while you are a human being, you feel demotivated a bit. But then as हाँ a जी हाँ. soldier, you have only one karma, that is to save and keep your nation safe and secure. That is your first and only karma. तो इसमें तो कोई सवाल कभी रहा ही नहीं कि जो है चाहे कुछ भी हो, आपने जो सिपाही का एक धर्म है उसको निभाना है और अपने देश के लिए आपने जो भी चाहिए आपने वो अ, बलिदान देना है. Sir, बड़ा I feel really nice talking to you. बड़ा interesting conversation. बड़े light hearted तरह से आपने बताया. But obviously this is not a very light hearted event. Uh, but आपने जिस तरह से बताया, I'm really grateful. You've taken out time to you know tell Dev Talks this story. And of course मैं आपसे एक और बारी बात करूंगा क्योंकि आपने ये भी mention करा कि कारगिल ऑपरेशन में भी आप थे. So we will plan Yes, another talk जब आपका where we will try and take your Kargil experiences also. for Uh, sure. Yeah, I have actually participated in for the entire Kargil battle in '99, and in fact I volunteered for it, and that's how I reached sure. there. So of course it will be a pleasure to discuss that too, नहीं and sir, it's good absolutely, topic. and I'm gonna take you up on this very shortly. This Soldier Speaks is something which I figured कि बहुत लोगों को because मैं तो पढ़ता रहता हूँ सर. मेरे को तो बड़ा शौक है छोटी-छोटी कहानियां पढ़नी. Okay. Um, because it keeps you feeling nice about your country and the people in it. For me, it's a very big motivating factor. I mean, मेरे को ये चीजें छोटी-छोटी कहानियां पढ़नी and this and that, it really motivates me quite a bit. So I thought let's put it out to the public. And ये stories तो सर अभी online जाएंगी. So my opinion is that they'll be timeless. आज True. हम हैं, कल हम ना रहें, हमारे बाद भी लोग देखेंगे इनको and they should remember these stories for time to come. For Yes. that, sir, thank you so much for bringing this story apart. And मैं आपसे obviously I'll keep in touch and get you back for the story of Kargil, sir. Till then, Jai Hind, sir. And Adi, and thank you so much. It's been wonderful that you are taking interest in these stories and these true incidents. And the country need to know about it, especially the youth need to know about it, and you are doing a wonderful work on that. Thank you so much. Thank you. Jai. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind, sir.